right, let's quickly shift focus to the other big development coming in. It's the Prime Minister's birthday, and he's chosen it to be the first reaction on his puja, Ganesh Puja, with the Chief Justice of India. Prime Minister Modi defends the Ganesh Puja with the CGI, saying power-hungry people dividing society. My Ganesh Puja hurt the ecosystem. Well, these visuals had come in where Prime Minister had gone to the residence of the Chief Justice of India for the Ganpati Puja, and these visuals had beamed out, had become politically controversial at that, where many political barbs coming his way. The Prime Minister now saying, my Ganesh Puja hurt an ecosystem. Listen in. बांटो और राज करो की नीति पर चलने वाले अंग्रेजों की नजरों में उस समय भी गणेश उत्सव खटकता था। आज भी समाज को बांटने और तोड़ने में लगे सत्ता के भूखे लोगों को गणेश पूजा से परेशानी हो रही है। आपने देखा होगा कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम के लोग पिछले कुछ दिनों से इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि मैंने गणपति पूजन में हिस्सा लिया था। और तो और कर्नाटका में जहां इनकी सरकार है वहां तो इन लोगों ने और भी बड़ा अपराध किया। इन लोगों ने भगवान गणेश की प्रतिमा को ही सलाखों के पीछे डाल दिया। पूरा देश उन तस्वीरों से विचलित हो गया। ये नफरत भरी सोच, समाज में जहर घोलने की ये मानसिकता, ये हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए ऐसी नफरती ताकतों को हमें आगे नहीं बढ़ने देना है। Cutting across to Piyush Mishra, who's joining us live for more. Piyush, the Prime Minister choosing his birthday to bring up the entire political controversy that had erupted at the back of his prayers of the Ganpati Puja with the Chief Justice of India. Absolutely, Preeti. This is the very first statement coming in from Prime Minister on the entire controversy. You would remember that last time when this controversy had erupted, PM Narendra Modi had gone there to the residence of CGI Chandrachud, after which we had seen how the leaders like Sanjay Raut, Priyanka Chaturvedi, they all had come out and they had questioned the impartiality of Chief Justice of India. In fact, Sanjay Raut had gone on to say that CGI should recuse himself from a case in which Shiv Sena is a party and central government is also the party, after which we had also seen how the BJP had at the time slammed the opposition. But this time, for the very first time, PM Narendra Modi coming out on record, on camera, where he is now saying that an entire ecosystem is disturbed just because I attended Ganpati celebrations. He has also targeted the Congress government of Karnataka on the attacks that have taken place on Ganesh Chaturthi day. So that's the big statement, a big message coming in from PM Narendra Modi to all the opposition leaders, where he is now saying that the opposition is now trying to divide the society. The entire ecosystem is disturbed just because I attended the Ganpati celebrations. When the entire controversy had erupted, Preeti, you would also remember that BJP at the time had said that it was only a part of culture that PM Narendra Modi attended the Ganpati celebrations, but various leaders from Shiv Sena, Congress, they all had come out and they had questioned the impartiality of CGI. They had also said that this meeting somewhere raises a lot of questions over the integrity of D.Y. Chandrachud. But PM Narendra Modi has now, in a stern message, said it very clearly that the opposition is very much disturbed and the entire ecosystem is disturbed just because of me attending Ganpati celebrations. All right, stay with me, Piyush. Let's get in reactions. We have Congress leader, Rajya Sabha MP Pramod Tiwari, who's joining us on the phone line right now. Pramod Tiwari ji, प्रधानमंत्री ने साफ बोला है कि एक इकोसिस्टम हर्ट हुआ है। कांग्रेस को बहुत बड़ी तकलीफ हुई जब प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूजा कर रहे थे, गणपति पूजा। मैं उन्हें बहुत ही साफ कह देना चाहता हूं
आप किसी के यहाँ जाएं, कुछ करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप प्रधानमंत्री हैं, आप अगर आमंत्रित हैं, आप जा सकते हैं एक धार्मिक कार्यक्रम में, किसी को कोई आपत्ति उस पे नहीं। आपत्ति इस बात पर है कि जिस तरीके से पीएमओ ने पब्लिसाइज किया न्यूज, चीफ जस्टिस के साथ पूजा बिल्कुल घर में जाके, और प्रमोद तिवारी जी, हाँ जी, बोलिए सर, कंप्लीट करिए। नहीं, आप पता है कि अगर पीएमओ ने पब्लिसाइज किया, ये तो मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का, उनको जहां पर भी पीएम जाते हैं वो तो उनके विजुअल्स आते ही हैं। देखिए, निजी कार्यक्रम कुछ अलग होते हैं। पर प्रमोद तिवारी जी, उन्होंने एक और चीज कहा है कि कर्नाटका में जो कांग्रेस की सरकार है वहां पर गणपति पूजा का जो विरोध हो रहा है, तो वो एक उस एंगल पर भी कांग्रेस को कटाक्ष की है। मैं दोनों बातें एक साथ मिला के कह देता हूँ। एक तो जो मैंने कहा, बड़ी पुरानी लैटिन कहावत है, और जो हिंदुस्तान की जुडिशरी में हमेशा इसको ध्यान में रखा गया है कि जस्टिस इज नॉट ओनली टू बी डन, बट ये होना चाहिए कि जस्टिस हैज बीन डन, ये दिखना भी चाहिए। न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, ये दिखना भी चाहिए कि न्याय हो। आप एक निजी कार्यक्रम में जाके जिस तरह प्रधानमंत्री का, अब तो एम्बेरस कर रहे हैं चीफ जस्टिस को भी और जुडिशरी को। ये कोई सार्वजनिक कार्यक्रम तो था नहीं, ये कार्यक्रम एक निजी कार्यक्रम था, तो उसकी निजता का ध्यान रख। आप गए थे, जरूर करके आते, लेकिन उसको जिस एंगल से आपने प्रचार प्रसार किया, आप संदेश क्या देना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी? जहाँ तक कर्नाटक में तो 7-8 राज्यों में छुटपुट घटनाएं आई। कर्नाटक सरकार ने सबको बराबरी से मौका दिया है, और इसमें भी मौका दिया है, लेकिन तो कोई नहीं इनकार कर सकता ना, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि छुटपुट घटनाएं राजस्थान में हुई, कर्नाटक में एक आध घटना रिपोर्टेड है, और दूसरे प्रांतों में भी हुई। तो ये घटना अगर हुई है तो इसे रोका जाना चाहिए। लेकिन कर्नाटक को प्रधानमंत्री जी अकेले काहे उद्धृत कर रहे हैं? क्यों अपने उन राज्यों का जिक्र नहीं कर रहे हैं जहाँ पे घटनाएं हुई हैं? तो ये सब प्रधानमंत्री जी की राजनीतिक ईमानदारी पर सवालिया निशान लगाता है। बहुत शुक्रिया प्रमोद तिवारी जी कि आप हमसे जुड़े। लेट्स गेट इन मोर रिएक्शंस। राजीव राय, समाजवादी पार्टी एमपी लोकसभा फ्रॉम घोसी, आल्सो जॉइनिंग अस राइट नाउ। राजीव राय जी, सीधा कटाक्ष इकोसिस्टम के तौर पर ऑपोजिशन को भी की है, आपकी पार्टी भी उसमें शामिल है, कि बहुत तकलीफ होती है आप लोगों को जब आप ऐसे विजुअल्स देखते हैं जो प्रधानमंत्री पूजा कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ। देश डिस्टर्ब होता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इनका भगवान से प्यार जब चुनाव आता है हर राज्यों के चुनाव के हिसाब से होता है। उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ तो प्रभु राम के प्रति इन्होंने जब शुभ मुहूर्त नहीं था तभी भी उद्घाटन कर दिया, और उसी राम मंदिर में जब बरसात में पानी भर गया, रास्ते टूट गए, तो प्रधानमंत्री का खामोश रहे। महाराष्ट्र का चुनाव आया तो गणपति याद आ जाएंगे, उड़ीसा का चुनाव आएगा तो जगन्नाथ जी याद आ जाएंगे। तो प्रधानमंत्री जी की जो धार्मिक भावना है चुनाव को देख कर होती है, और हम लोग वो हैं जो 24 घंटे मुझ में राम तुझ में कण कण में राम। तो प्रधानमंत्री जी को शायद मुझे लगा कि अयोध्या के हार से सबक लिखेंगे कि राम भगवान राम पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने इस बात की इजाजत नहीं दी कि उनका राजनीति के लिए, कुर्सी के लिए इस्तेमाल किया जाए, इसलिए चित्रकूट से भी हारे, अयोध्या से भी हारे और बद्रीनाथ से भी हारे। मुझे लगा सबक ले लेंगे, लेकिन इस चुनाव में उन्होंने प्रधानमंत्री, मान लीजिए प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस को बोलेंगे मैं आना चाहता हूँ, तो माननीय मुख्य न्यायाधीश बना तो कर नहीं पाएंगे। इनको अभी क्यों याद आए? क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव है तो टोपी पहन के चले गए वहाँ महाराष्ट्र की। इसलिए लोगों को पीड़ा होती है कि देश के प्रधानमंत्री को हम स्वच्छ, ईमानदार, हमेशा एक जैसा देखना चाहते हैं, मौसम के साथ बदलते हैं और राजनीतिक मौसम के साथ अपनी धार्मिक भावनाओं को जाहिर करते हुए नहीं देखना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े राजीव राय जी, शुक्रिया। बट लेट्स कट अक्रॉस बैक नाउ टू द प्राइम मिनिस्टर।
a clear jibe where the opposition is concerned, especially where the Congress bringing up the violence that has taken place during Ganpati Puja in Karnataka, saying that they can't safeguard the Ganpati even during Ganpati Puja, but also saying that the ecosystem was deeply disturbed when he was seen doing puja, performing puja alongside the Chief Justice of India and his wife at their residence during Ganpati Puja. Listen to what he said. बांटो और राज करो की नीति पर चलने वाले अंग्रेजों की नजरों में उस समय भी गणेश उत्सव खटकता था। आज भी समाज को बांटने और तोड़ने में लगे सत्ता के भूखे लोगों को गणेश पूजा से परेशानी हो रही है। आपने देखा होगा कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम के लोग पिछले कुछ दिनों से इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि मैंने गणपति पूजन में हिस्सा लिया था। और तो और कर्नाटका में जहां इनकी सरकार है वहां तो इन लोगों ने और भी बड़ा अपराध किया। इन लोगों ने भगवान गणेश की प्रतिमा को ही सलाखों के पीछे डाल दिया। पूरा देश उन तस्वीरों से विचलित हो गया। ये नफरत भरी सोच, समाज में जहर घोलने की ये मानसिकता, ये हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए ऐसी नफरती ताकतों को हमें आगे नहीं बढ़ने देना है। It is also the Prime Minister's birthday, and in the same speech, while speaking in Odisha on his birthday, he remembered his mother, who'd feed him with jaggery every year. This year, he was fed kheer by tribal women, though. यहां आने से पहले मैं हमारे एक आदिवासी परिवार के गृह प्रवेश के कार्यक्रम में उनके घर भी गया था। उस परिवार को भी अपना नया पीएम आवास मिला है। उस परिवार की खुशी, उनके चेहरों का संतोष मैं कभी नहीं भूल सकता। उस आदिवासी परिवार ने मुझे, मेरी बहन ने खुशी से खीरी भी खिलाई। और जब मैं खीरी खा रहा था तो स्वाभाविक था कि मुझे मेरी मां की याद आना, क्योंकि जब मेरी मां जीवित थी तो मैं जन्मदिन पर हमेशा मां के आशीर्वाद लेने जाता था और मां मेरे मुंह में गुड़ खिलाती थी। लेकिन मां तो नहीं है, आज एक आदिवासी मां ने खीर खिलाकर मुझे जन्मदिन का आशीर्वाद दिया। ये अनुभव, ये एहसास मेरे पूरे जीवन की पूंजी है। गांव, गरीब, दलित, वंचित, आदिवासी समाज के जीवन में आ रहा ये बदलाव, उनकी ये खुशियां ही मुझे और मेहनत करने की ऊर्जा देती है।